Hello students, our today's topic is electric heating appliances. Our electric current and effects lesson is going on and our today's topic is electric heating appliances. Last class में हमने applications देखे heating effect of electric current, मतलब ये heating effect of electric current कहाँ-कहाँ पे apply हो रहा है, तो ये कहाँ-कहाँ पे apply होता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहला है electric heating appliances. So student, as you know that all the electrical appliances work on the heating effect of electric current. Okay, so ये सभी appliances में एक high resistance wire का coil होता है जो नाइक्रोम से बना होता है. Okay, नाइक्रोम वायर. So it is called heating element. इसे heating elements कहेंगे या simple elements कहेंगे. Okay, means electrical appliances का जो parts heat होता है हम उसे heating elements कहते हैं. Okay, so when the electricity pass through this electrical appliances, large number of heat is produced in the element and due to which the elements become red hot. अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसमें से तो हीट प्रोड्यूस होती है और एलिमेंट्स जो है वो red hot हो जाता है. Okay, so a lot of heat is produced in heating elements because it is made up of high resistance nichrome wire and negligible heat is produced in connecting wire of copper because copper has a low resistance. यहाँ पे आप रूम हीटर की डायग्राम देख रहे हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ रूम हीटर. इनसाइड द रूम हीटर देयर इज वन कॉइल व्हिच इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम वायर. तो जब हम इस रूम हीटर को ऑन करते हैं सो हियर दिस नाइक्रोम वायर बिकम रेड हॉट. ये रेड हॉट हो जाता है ड्यू टू व्हिच हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट पास होने से वो रेड हॉट हो जाता है. So this cord of this room heater it is made up of copper wire. So it is not become red hot. ये red hot नहीं होता है because very less heat produced here and it is made up of it is of low resistance. Okay. Second जो है यहाँ पे electric bulb. This electric bulb also work on the heating effect of electric current. Okay. Inside the bulb there is a filament which is made up of tungsten. So these filaments having the high resistance wire and when the electricity pass through this high resistance wire of this thin filament, here also heat is produced and the bulb become hot and it start glowing. Current pass होने से वो hot हो जाता है और वो glow करता है. But these filaments become white hot, not red hot. Okay, red hot नहीं होता है, white hot होता है. And the connecting wire this also not become too hot. Means less heat is produced there because of the low resistance. तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है it is basically used for producing the light. But here heat is also produced. Light produce करने के लिए होता है ये, मगर यहाँ पे heat भी produce हो रहा है. Means large part of this electricity used by these filaments to change it into heat. ओके, फिलामेंट्स उसके लार्ज पार्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा है हीट प्रोड्यूस करने में एंड वेरी लेस पार्ट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द लाइट. मींस अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज कर रहे हैं मींस वी आर वेस्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब है मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट कर रहे हैं. ओके, सो फॉर द रिडक्शन ऑफ दिस वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट नहीं करना है वी हैव टू यूज दिस फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट एंड द कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप. ये कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है और ये फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है. दिस फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप डू नॉट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दे डू नॉट कंटेन द फिलामेंट. इसमें फिलामेंट्स भी नहीं होता है. ओके, सो दिस फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट इट कंटेन दी मर्क्यूरी वेपर्स. इसके अंदर मर्क्यूरी वेपर्स होते हैं जो एक प्रकार की गैस है. ओके, एंड दिस ग्लास ट्यूब इट इज कोटेड विद द व्हाइट ओपेक मटेरियल इट इज कॉल्ड फास्फोरस. व्हाइट ओपेक मटेरियल से बना होता है जिसे हम फास्फोरस कहेंगे. ओके, सो दिस मर्क्यूरी वेपर्स इमिट्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन and this phosphorus absorb the ultraviolet radiation. So this fluorescent tube light and compact fluorescent lamp work on the same principle. Okay, both are fitted on the ordinary bulb holder. Ordinary bulb holder में आसानी से फिट होते हैं. They are expensive. ये expensive होते हैं but they can last forever. और expensive होते हैं बहुत दिनों तक वो चलते हैं. Okay. सो स्टूडेंट अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको आईएसआई मार्क को देखना है.
ISI मार्क उसमें है कि नहीं। ISI मार्क का मीनिंग क्या है कि वो हमारे लिए सेफ है, ओके, और वो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा वेस्ट नहीं होती है। तो इसलिए हमें ISI मार्क वाले ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को खरीदना है और हमें फ्लूरोसेंट ट्यूबलाइट और कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप यूज करना है इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में देखेंगे।